Shalom, good evening, everybody. Good evening, Thavreen. Shalom, good evening. Good evening, आप सबको. So, we welcome you to this Hindi session of studying the Gospel of Luke. हम आपका स्वागत करते हैं इस हिंदी सभा में जहाँ पे हम लूका की किताब को पढ़ेंगे. And we have been studying the first two chapters, and it's been a real fabulous understanding of how Luke has written and started this gospel for us to understand the story of Yeshua far better. तो हम आगे जैसे हम लूका में पढ़ेंगे आपको हम बताएंगे कि यीशु मसीह के बारे में जो लूका ने लिखा है, सुसमाचार जो यीशु मसीह का है, जो इस लूका की किताब में लिखा गया है, कितनी अद्भुत तरीके से और कितनी सुंदर तरीके से लिखा गया, उसे हम पढ़ेंगे आगे. Now, we will jump straight to verse 3 in chapter 3. It says, and it's talking about Yochanan HaMatbil, who is John the Immerser or John the Baptist. तो हम देखेंगे लूका का 3 अध्याय 3 वचन जो कहता है, और यह यरदन के shall I read the verse? Yes. और वह यरदन के आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिरा के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा. And John the Baptist came in the wilderness to the river Jordan, and he was crying out and he was preaching to the people to turn back from their lives and to repent, and he was baptizing them into repentance. योना जो बपतिस्मा देने वाले थे वो बाहर आए, उन्होंने सबको आके लोगों को कहा अपने गलत कामों से मुंह फिराओ, और उन्होंने कहा पश्चाताप करो, और उनको पश्चाताप की तरफ वो लेके जाते थे. Now this is the reason, there is a reason why this is happening. इसका एक कारण है ये क्यों हुआ है. Because the Jewish people have stopped doing and living the purpose that God wanted them to live. क्योंकि यहूदी लोगों ने वो करना छोड़ दिया था, और वो मकसद उनका छूट गया था जो परमेश्वर ने उनसे कहा था करने के लिए, जिस मकसद से उन्हें चुना, जिस मकसद से वो बुलाए गए थे, उनका वो मकसद उनसे छूट गया था. इस वजह से God had called them out of Egypt to make them into a people, make them into a nation, give them power and authority, and bring them into the land. परमेश्वर ने उनको इजिप्ट से बाहर मिस्र देश से इसलिए बाहर निकाला ताकि वो उन्हें अधिकार दे सके, और उन्हें काफी सारी चीजें दे सके. And being in the land, now there would be a light to the world, and through the nation of Israel, they would be able to change the world and rectify the world back to God. I'm sorry, can you repeat please? That through the nation of Israel, God will be able to rectify the world. ताकि ये इज़राइल के द्वारा परमेश्वर इस पूरे संसार को सुधारना चाहता था. And because of this, God had specifically given them a role and a certain amount of laws and instructions to accomplish while they were living in the land. और इसी वजह से परमेश्वर ने उन्हें एक नियम दिया था. जब वो उस भूमि पे रह रहे थे, उन्हें बताया गया था कि उन्हें कैसे रहना चाहिए और किस नियमों का पालन उन्हें करना चाहिए था जब वो उस भूमि पे थे. So as long as they were the sons of Jacob, then they were not performing the role of being Israel. जब तक वो याकूब के पुत्र थे, तब तक वो इज़राइल के सारे अधिकारों को या सारी बातों को सारी बातों पे वो नहीं चल पाते थे. So in one way, being sons of Yaakov is also a very high spiritual level, but it's not the role of being Israel. याकूब के पुत्र होने के नाते वो उस बातों का पालन नहीं कर पा रहे थे जो याकूब था, और इज़राइल के बच्चे होने के नाते वो उस बातों का पालन नहीं कर पा रहे थे जो उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि याकूब एक बहुत बड़ा धर्मी व्यक्ति था. So the word Israel, if you all want to know, comes from a combination of two words. तो जब आप देखोगे इज़राइल जो शब्द है, ये दो शब्द को जोड़कर ये शब्द बना है.
The first word is yashar, which means to be straight and to be absolutely uh, uh, straight, not crooked, to be absolutely straight. तो जो पहला शब्द है वो है यशार, उसका मतलब होता है कि सीधा देखना, सीधा पूरी तरह से। And L is the word for power or the power of God. और एल का मतलब होता है परमेश्वर का सामर्थ्य। So Israel simply means somebody who is absolutely straight with God. So, इसका मतलब है, इज़राइल का मतलब है कि उस ऐसा कोई व्यक्ति जो सीधा परमेश्वर से जुड़ा हो या परमेश्वर के पास था। Yes. So now John the Baptist is coming and preaching to the children of Jacob and telling them that you all have not reached your potential of being Israel. You all are still, you know, being sons of Jacob, but you all have not reached Israel as yet. तो जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब वो बाहर आता है और बच्चों को बताता है कि तुमने अभी तक वो भूमिका नहीं निभाई है जो इज़राइली को निभानी चाहिए। तुमने अभी तक वो चीज़ों का पालन नहीं किया, वो नियमों का पालन नहीं किया जो इज़राइल का मतलब होता है, वो उसे जो उन्हें पूरा करना चाहिए था, उन्होंने वो बातों का पालन नहीं किया हुआ है। इसलिए वो उन्हें बताना चाहता है। Now, there is a certain place in the New Testament where uh, they ask they ask Jesus, यहाँ पे एक जगह पे वहाँ पे वो यीशु मसीह से पूछते हैं, is John the Baptist Elijah that was supposed to come? क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलीजा है जो आने वाला था? And Jesus says, yes, he was Elijah that was supposed to come and prepare the way for me. तो यीशु मसीह ने कहा, हाँ, ये जॉन द बपतिस्मा वही एलिय्याह है जो आने वाला था और मेरे लिए मार्ग बनाने वाला था। Now, read verse 4. तो आगे हम देखेंगे लूका का तीसरी किताब से चौथा अध्याय हम देखेंगे, चौथा वचन हम देखेंगे। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में एक पुराने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसी की सड़कें सीधी बनाओ। Correct, na? To Yes. make his path straight. What do you mean by make his path straight? That means John the Baptist was crying and telling them, come on, you sons of Jacob, you'll have to fulfill your role as Israel. तो मार्ग को सीधा करने का मतलब ये होता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो कह रहा था याकूब के बच्चों से कि तुम्हें तुम जो इज़राइल के बच्चे हो, तुम अपने मार्गों को सीधा करो। Wonderful, wonderful. Now, if we say that John the Baptist was actually Elijah that was to come, that means we have to go back to the Old Testament to reference this. तो अगर हम कहते हैं कि जॉन बपतिस्मा देने वाला एलिय्याह था, तो इसका मतलब है कि हमें पुराने करार में जाना पड़ेगा ताकि हम उसे जोड़ सकें। So now let's go to the book of Malachi to understand what exactly is happening out here. तो अब हम देखेंगे कि मलाकी की किताब जानने के लिए कि इस बारे में हुआ क्या है आगे। Because इसका मतलब क्या है? in this book of Malachi, you will get exactly what John the Baptist is actually doing. तो मलाकी की किताब से आपको समझ आएगा वही सारी बातें जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कर रहा था। Read last chapter, which is Malachi 3, and read from verse 19 till the end of the chapter. तो अब हम पढ़ेंगे मलाकी का तीसरा अध्याय 19वां वचन से लेके मलाकी 3 और मलाकी 4। Oh, I think in your English Bible is Malachi 4, but in the Hebrew Bible is 3. Okay, so just read verse 19 and till the end of the book. Malachi 4, I can see only 6 points, 6 verses. From which verse is that? The last verse which I can see in Malachi 4 is, No, which is the first verse in chapter 4?
For behold, the day shall come kindled as a furnace, and all the proud and all that do wickedly. Yeah. Okay. Read from there because there is no chapter 4 in the Hebrew Bible. Sorry. Hebrew Bible. Okay. No Yeah. problem. So I read from here the entire chapter, right? Chapter. Yeah. तो हम पढ़ेंगे मलाकी का चौथा अध्याय। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे पूरे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो जो विधि और नियम मैंने सारे इज़राइल के लिए उसके होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा, और वह माता पिता के मन को उनके पुत्र की ओर और पुत्र के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। There's so much of information in this now because until we do not understand this, we will not understand what John the Baptist is doing. तो इसमें बहुत सारी जानकारी छिपी हुई है। तो जब हम इसको नहीं समझेंगे, अगर हमने इसे नहीं समझा, तो हम नहीं समझ पाएंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कर रहा था। So, first thing, it says, be mindful of the teaching of my servant Moses, whom I charged at Mount Horeb with the laws and the rules for all of Israel. तो सबसे पहली बात है, ये है कि आप दिमाग लगाइए, आप सोचिए, आप उस चीज को ध्यान दीजिए जो मूसा उस नियमों पे जो मूसा को पहाड़ होरेब में दी गई थी, नियम की किताब जो ने दी गई थी। Correct, na? So now if John the Baptist is coming like Elisha, then God is saying that this same Elijah will teach you and remind you of all the laws and the instructions that were given to Moses at Mount Sinai. तो जब हम कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिय्याह है, तो आपको वो सारी बातें याद दिलाएगा जो मूसा को परमेश्वर ने दी थी, वो सारे नियम जो परमेश्वर ने मूसा को दिए थे पुराने करार में माउंट होरेब पे। And he says, I will send you Elijah to do this. And then Jesus says that this Elijah has come and he is John the Baptist. और यहाँ कहा गया है कि एलिशा को मैं भेजूंगा, एलिय्याह आएगा तुम्हारे पास, मैं भेजूंगा ये सब वापस से करने के लिए, याद दिलाने के लिए। और एलिय्याह आया जॉन बपतिस्मा के लिए। Which means now John the Baptist is telling the children of Israel to remember all the commandments and the laws that were given to them by Moses. The law and the Torah is not been removed, my friends. तो इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को कहता है, यहूदियों को कहता है कि तुम याद करो उन बातों को, उन सारी आज्ञाओं को, उन सारे नियमों को जो परमेश्वर ने दिया है मूसा को, और वो खारिज नहीं है, वो उसको तुम्हें याद करना है। Okay, then it says, and what is going to be the role of this Elijah who comes as John the Baptist? He will reconcile the parents with the children and the children with the parents. He will bring together the relationship between the parents and the children together. तो यूहन्ना बपतिस्मा देने की भूमिका ये रहेगी कि वो सबसे पहले माता पिता और बच्चों को दोबारा मिलाएगा, बच्चों को माता पिता से और माता पिता को बच्चों से मिलवाएगा। Keep this in mind. It's very, very important because we will expand on this a little later. तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि क्योंकि इसी बात के यूहन्ना माता पिता और बच्चों को एक दूसरे से मिलवाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए क्योंकि इसी चीज पे हम आगे पढ़ेंगे। So that when the Lord comes, he will not strike the earth with a curse or with destruction because of this.
ताकि परमेश्वर जब आए वो आई एम सॉरी कैन यू रिपीट So that when the Lord comes, he will not be able to strike the earth with a curse. तो ताकि परमेश्वर जब आए वापस वो फिर से भूमि को खत्म नष्ट ना कर पाए, ना ही कोई श्राप के द्वारा कोई उन्हें पृथ्वी को नष्ट ना कर पाए। So there are two things we got to answer, two questions. तो 2 क्वेश्चन है, 2 प्रश्न है जिसका हमें उत्तर देना है। One is we have to understand what are the laws and the instructions that were given to Moses, and second thing is we have to answer as to how will the reconciliation of parents to the children and children to the parents happen. तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ों का उत्तर चाहिए। सबसे पहला है कि ऐसे कौन से नियम थे या ऐसी कौन-सी बातें थी जो मोसेस को दी गई थी, मूसा को दी गई थी और दूसरी बात है आपको हमें जानना है कि ऐसा क्या होने वाला है कि माता-पिता अपने बच्चों से और बच्चे अपने माता-पिता से फिर से जुड़ जाएँगे। Okay. Now to answer question number 1, we have to go to the book of Leviticus. तो इसका उत्तर देखने के लिए हमें देखनी लेवी व्यवस्था की किताब हम देखेंगे। We'll go to chapter 1 हम पहला अध्याय देखेंगे and we will read verses 1 and 2. Can you read verses लेवी 1 and 2? व्यवस्था का यश लेवी व्यवस्था का पहला अध्याय हम पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। इसमें लिखा है यहोवा ने मिलाप वाले तंबू में से मूसा को बुलाकर उससे कहा, इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों व भेड़ बकरियों में से एक का हो। Now I want to explain this to you. Be very attentive when I am explaining this to you. Very, very important. तो मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, आप इस पे पूरा ध्यान दीजिए जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। First of all, the language that has been written and given to us in the English and the Hindi and the Marathi or whatever language is being translated does not bring out the full essence of the original Hebrew. तो जिस भाषा में ये लिखा गया है, ये आपको पूरी तरह से समझाने के हिसाब से नहीं लिखा गया है या पूरी बात नहीं दर्शाता। ये लैंग्वेज में जो भी लिखा हुआ है भाषा में, ये पूरी बात नहीं दर्शा रहा है। Okay, it says that the Lord called to Moses and spoke to him from the tent of meeting. यहाँ लिखा है यहोवा ने मिलाप वाले तंबू में से मूसा को बुलाकर उससे कहा। Now, what is in the tent of meeting? तो ऐसा क्या है मिलाप वाले तंबू में? Inside the tent of meeting is the holy place. तो मिलाप वाले तंबू के अंदर पवित्र स्थान है। And inside that holy place is the holy of holies. तो पवित्र स्थान के अंदर है पवित्र से पवित्र चीज। And inside the holy of holies is the ark of the covenant. तो उस पवित्र चीज के अंदर आर्क ऑफ कवेनेंट जस्ट अ सेकेंड उस पवित्र से पवित्र चीज के अंदर वाचा का संदूक है। And that ark of the covenant is very special because on the cover of the ark of the covenant is the mercy seat of God. और उस ये वाचा का संदूक है, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये वाचा का संदूक जो है इसके ऊपर जो है परमेश्वर का स्थान है, राइट? Mercy seat of God. मर्सी सीट ऑफ गॉड। इस पे परमेश्वर दया मर्सी सीट इट्स अ 1 मिनट मर्सी सीट ऑफ गॉड, राइट? Yes. परमेश्वर की दया का स्थान है। And on that mercy seat, God told Moses that I will descend on that mercy seat in a cloud and I will talk to you. परमेश्वर ने कहा कि उस दया के स्थान पे मैं ऊपर से उतरूंगा और वहां विराजमान होगा और मैं तुमसे बात करूंगा। Now, when we are reading this, we have to understand that God is calling Moses from that same mercy seat, which is inside the Holy of Holies on the Ark of the Covenant, saying, Moses, Moses. तो हमें समझना होगा कि परमेश्वर मूसा को उसी दया की स्थान से बुला रहा है और वो बाहर उन्हें उस तंबू से बाहर बुला रहा है, मोसेस कह के। And then he's telling Moses, speak to the children of Israel and say these words to them.
और वो मूसा को बुला के ये कहते हैं कि तुम इज़राइल के बच्चों से बात करो और उन्हें ये बात बताओ। I'm going to read it in the Hebrew, okay? So you don't have to translate. It says, Vayikra el Moshe vayadaber Adonai elav me ohel meod leamor daber al bnei Israel ve'amarta alehem. It says, and say these words to them, when any one of you presents an offering to the Lord, he shall choose his offering from either the herd or from the flock. Verse 2. हाँ, तो यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम जाके इज़राइल के बच्चों से कहो कि जब तुम दान देने के लिए आगे आते हो तो तुम जो भेंट चढ़ाने वाले हो वो भेंट होना चाहिए बलि पशु गाय बैलों का या भेड़ बकरियों में से एक का हो। Now, I'm going to read this verse also in the Hebrew, but I want you all to catch certain words, okay, and write it down. It says, Adam ki ya kharib michem korban la Adonai min ha behema min ha habakar umin ha hadzon takrebenu et karbanechem. Now, there is a certain word out here I want you all to write down. It's the word korban. तो ये जो इन्होंने अभी हिब्रू में इन्होंने पढ़ा है, इब्रानी में जो पढ़ा है, ये इसको आप ध्यान से लिखिए क्योंकि इसमें एक शब्द का बारे में हम जानेंगे कुर्बान, राइट? Yes, korban. And कुर्बान। we have to study this word kurban, because until we do not understand this word kurban, we will not be able to understand what's happening in the book of Malachi, and we will not be able to understand what John the Baptist is telling the people. तो जब तक हम ये शब्द का मतलब नहीं समझेंगे, इस शब्द के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम नहीं समझ पाएँगे कि मलाकी की किताब क्या कहना चाहती है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहना चाहता है, लूका में जो लिखा गया है। So the word kurban comes from the word karav, which means the inner portions of a person or the nearness of a person, to be absolutely near to a person, nearness. तो कुर्बान का जो शब्द है, इसका मतलब है ये एक खराव शब्द से आता है, जिसका मतलब होता है इंसान के शरीर के अंदर का नज़दीकी हिस्सा। Yeah, the deepest portions of your soul, the karib, the deep, the nearness. So basically, if I want to, like in Urdu, it says na kisi ka karib ana. हाँ, तो ये खराव का मतलब एक ये भी है कि तुम्हारे मन के कुछ नज़दीक है वो चीज़। इसका मतलब ये होता है ना, उर्दू में कहते हैं कि दिल के करीब आना। So this is the true root meaning of the word kurban. It's to come near or to draw close. तो सही मायने में कुर्बान का मतलब ये होता है कि नज़दीक जाना या पास में आना। So kurban does not mean sacrifice. Sacrifice is a different word altogether in the Hebrew language. कुर्बान का मतलब त्याग देना नहीं है, त्याग देना कुछ पूरे अलग ही बात है, उसका मतलब ही कुछ और है हिब्रू लैंग्वेज। So in other words, God is telling Moses and is giving Moses a blueprint of how humanity can come near to God. तो इस अलग तरीके से परमेश्वर ने मूसा को कहा है कि किस तरह से इंसानियत परमेश्वर के करीब आ सकती है, इंसान परमेश्वर के करीब आ सकता है। He's giving Moses a blueprint of the process, of the way, and what needs to be done to approach and come closer and closer and closer into the presence of God. ओके, तो वो मूसा को बिल्कुल पूरी तरह से ब्लूप्रिंट में लिख करके दे रहे हैं कि लिख के दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि वो कैसे इंसान, वो तरीका बता रहे हैं, वो ज़रिया बता रहे हैं, वो पूरी तरीके बता रहे हैं, किस तरीके से इंसान परमेश्वर के दिल के करीब आ सकता है। So now let me rephrase this sentence again so you'll understand it better. मैं एक बार फिर से इस बात को दोहराऊँगा ताकि आप इसे गहराई में समझ सको। The Lord called to Moses and spoke to him from within the tent of the meeting, from a place of mercy, saying, Speak to the children of Israel. When any one of you wants to come close to me, then you will bring
an offering of either from a flock or from a herd. तो हम पूरी बात को एक बार फिर से दोहराएँगे। यहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, उस मिलाप वाले तम्बू में से उस दया के स्थान से बुलाया और उन्हें कहा कि तुम तम्बू वाले स्थान से बुला के कहा कि इस बातों कुर्बान को, राइट? फ्रॉम द मर्सी सीट। Whenever anyone wants to draw close to me in Karibana, you हाँ। have to bring an offering from the flock or from the herd. तो जब भी तुम मूसा को कहा, दया की स्थान से पुकार के मूसा को कहा कि जब भी कोई इंसान मुझसे मेरे करीब आना चाहता है, तो वो जाके एक दान लेकर आए, एक भेंट लेकर आए, उसके बलि पशु में से या भेड़ बकरियों में से कोई एक दान लेकर आए। In other words, a korban is an approach present. और दूसरी भाषा में अगर हम देखें या दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो कुर्बान का मतलब है एक अपने अपनी बात को आगे रखना एक भेंट के रूप में। An approach present. How would you say an approach present? अप्रोच प्रेजेंट, प्रेजेंट इज गिफ्ट। Yes. पहुंचना, अपने भेंट के द्वारा पहुंचना। Okay, let me explain it to you like this. Suppose you want to get close to somebody. Suppose you want to, suppose a man likes a girl or a girl likes a man and they want to get to know each other. They want to come close to each other. What do they do? तो भेंट लेके जाते हैं। उस तरह से वो अपना, अगर कुर्बान का मतलब एक तरह से ये है दूसरे शब्दों में कि अगर आप परमेश्वर के करीब जाना चाहते हो तो अपनी भेंट लेके परमेश्वर के करीब जाते हो ताकि तुम अपने आप को उनके आगे रखते हो। So, by giving gifts, you gain the relationship, you gain a confidence, you gain a kind of a relationship by drawing close. It helps you to draw close to that person. It is the same with God. तो जैसे आप किसी को भेंट देते हो, आप उस रिश्ते को आगे बढ़ाते हो, आप उस रिश्ते को गहराई में ले जाते हो, आप उस रिश्ते के करीब आते हो, उसी तरह से आप जब परमेश्वर के आगे भेंट लेके जाते हो, आप परमेश्वर के करीब आते हो। Even when you go to your mother-in-law's house or your father-in-law's house or any your in-laws house, you take a gift and go, because that gift now shows to that person that you're interested in having a good relationship with that person. तो जब भी आप अपने ससुराल में जाते हो या अपनी सास से मिलने जाते हो, ससुर से मिलने जाते हो, ससुराल में किसी से भी अगर आप मिलने जा रहे हो, तो आप एक भेंट के रूप में कुछ लेकर जाते हैं ताकि आप बताना चाहते हैं कि भई आप बिल्कुल इस रिश्ते में ध्यान है, आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो या इस रिश्ते में आपकी इच्छा है। You don't go empty-handed. It's not good. Am I right? यस। तो आप जब भी किसी से रिश्ता बढ़ाने जाते हो या किसी रिश्तेदार से मिलने जाते हो, आप खाली हाथ नहीं जाते हो, बिल्कुल। या So you can bring anything to God to build a relationship with God. तो आप परमेश्वर के आगे कुछ भी लेकर आ सकते हो जब आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बढ़ाना चाहते हो। But in truth, God does not need anything because He is the owner of everything. What can you give God? सच्चाई तो ये है कि परमेश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारी चीजों का मालिक वही है। तो ऐसी क्या चीज है जो आप लेके जाओगे परमेश्वर के साथ? What is the best thing you can give God? ऐसी कौन सी सबसे अच्छी चीज होगी या जो आप भेंट परमेश्वर के सामने लेके जा सकते हो? If you'll ask yourself this question and if you'll want to answer it, the answer is when you give yourself as a living sacrifice to God, it's the best gift. तो जब आप अपने आप से सवाल पूछोगे और उस सवाल का उत्तर यही है, जब आप अपने आप को एक जिंदा त्याग करके जीवित दान परमेश्वर के हाथों में सौंपते हो, वही सच्चा भेंट है परमेश्वर के लिए। Paul says in the book of Romans, chapter 12, he says, I beseech you, brethren, by the mercies of God, to offer your life as a korban khai, a living sacrifice to God. तो पौलुस एक किताब में कहता है कि मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम अपने आप को एक जीवित दान दो परमेश्वर का, अपने आप का एक दान दो परमेश्वर का जो जीवित दान होता है।
So, this process of giving God your mind, your heart, your actions, your deeds, and whatever you want to do in life, you lay it on that altar and you offer it to God as a living sacrifice to God. That is the best gift. तो जीवित बलिदान देने का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को, अपने मन को, अपनी सोच को, अपनी हर एक बातों को परमेश्वर के आगे दे देते हो, उनके हाथों में दे देते हो और ये सबसे अच्छी बात है जो परमेश्वर को भाती है। And why God spoke about flocks and herds and cattle is because God does not want you to slaughter yourself on that altar, but that cattle or that animal would correspond to the animal soul inside of you, which you are slaughtering instead of you. तो परमेश्वर इसलिए भेड़ बकरी या पशु की बलि मांगता है क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे इंसान के अंदर से वो जानवर को वो मार देना चाहते हैं जो इंसान के अंदर होता है ताकि वो जानवर मर जाए और आप एक अच्छे इंसान के रूप में परमेश्वर के आगे जीवित बलिदान बनो। Because the animal soul inside of you is the animal soul that does not know God and it is constantly sinning. आपके अंदर जो जानवर की आत्मा होती है, उस जानवर की आत्मा को मार देना चाहते हो, खत्म कर देना चाहते हो। वो जानवर की आत्मा जो परमेश्वर को नहीं जानती है और वो बार-बार पाप में गिरती रहती है। Until you do not put that on the altar and sacrifice the animal inside of you, you will not be able to come close in nearness, in korban, to the presence of God. जब तक आप अपने अंदर के जानवर को नहीं मार देते, जब तक खत्म नहीं कर देते, तब तक आप परमेश्वर के करीब नहीं आते। जब तक उस चीज़ का बलिदान नहीं कर देते, आप परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। So, this was the blueprint given to Moses in the book of Leviticus and in the Old Testament that every Jewish person had to follow in this process of coming close to God. तो ये एक ब्लूप्रिंट था जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था लेवी व्यवस्था की किताब में और पुराने करार में कि हर एक जूश को, हर एक यहूदी को फॉलो करना चाहिए, हर एक यहूदी को उस पे चलना चाहिए। But they were not able to do it properly and into perfection. पर वो नहीं कर पा रहे थे उसे सही तरीके से उस नियम का पालन नहीं कर पा रहे थे पूरी तरह से। They not only forgot about the laws, they forgot about the blueprint, they rebelled against God, they started sinning, and they all fell away into sin. वो सिर्फ किताब को भूले नहीं, वो परमेश्वर के नियम को भूले ही नहीं, बल्कि वो उन्होंने तुच्छ काम करने शुरू कर दिए, वो एक-दूसरे के खिलाफ हो गए, झगड़ा करने लगे और वो पाप में गिरते गए। That is why we have answered question number 1. Remember the laws and the Torah of which I gave my servant Moses at Mount Sinai. मैंने आपको यहाँ पे पहले प्रश्न का उत्तर दिया है। याद रखना कि मोसेस को जो परमेश्वर ने नियम दिए थे, परमेश्वर ने जो नियम दिए थे मोसेस को उस नियम के बारे में बताएं। And this is the law we're talking about. The greatest of all the laws is to give yourself as a living sacrifice to come close as a korban to God. तो ये एक नियम की हम बात कर रहे हैं। ये एक नियम ऐसा है जो जीवित बलिदान देना है परमेश्वर को ताकि हम परमेश्वर के करीब आ पाए। Okay, I hope you'll have understood this. Now, the only person who was able to perfect this korban, to live it perfectly, and to accomplish and to bring it into perfection is our Lord Jesus Christ. तो अब इस कुर्बान को पूरी तरह से पूरी नियम से पालन करने वाला एक ही व्यक्ति था, वो है यीशु मसीह। Because he lived his life as a korban khai, living sacrifice, and he gave himself on that altar, on that cross, and then he ascended to heaven and he offered the Father the perfect korban khai. तो उन्होंने जब वो पृथ्वी पे थे, उन्होंने अपना जीवन पूरे जीवित बलिदान की तरह जिया है, उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान किया है, वो क्रूस पे अपने आप को दे दिया, उसके बाद जब वो स्वर्ग में गए, उन्होंने अपना बलिदान परमेश्वर के हाथ में दिया। That is why when he resurrected and Mary Magdalene came to touch him, he told her, "Do not touch me because I've not ascended to my Father to offer myself as the perfect korban khai." इसलिए जब मरियम मगदलीन जब उन्हें छूना चाहती है, जब वो छूने आगे बढ़ती है, तब वो उन्हें रोक देते हैं और उन्हें कहते हैं
कि आप मुझे छूइए मत, क्योंकि मैं अब तक मेरे पिता के पास नहीं गया हूँ, ताकि मैं एक बलिदान के रूप में उनके पास नहीं पहुँचा हूँ। So, friends, when we are reading John the Baptist preaching and baptizing these people into repentance, it is not what you and me think it is all about. It's a far deeper teaching and understanding from the Old Testament as to what John the Baptist was actually telling the children of Israel to do. तो दोस्तों, जो हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में, ये वो जो अब तक हमने सुना है या किसी प्रचार किया है या हमने सुना है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गहराई में यूहन्ना बपतिस्मा सिखा रहा था उन लोगों को कि अपने गलत कामों से मुख फेरना और अपने आप बलिदान परमेश्वर को आगे रखना है। He was telling them to to look at the blueprint and for each of them to come back and offer themselves as a korban kai to God. तो वो याद दिलाना चाह रहा था, वो कह रहा था लोगों से कि तुम उस ब्लूप्रिंट की, उस नियम की याद करो, उस नियम ब्लूप्रिंट को याद करो और अपने आप को कुर्बान करो परमेश्वर के आगे और एक जीवित बलिदान के रूप में आगे परमेश्वर के आगे आओ। And then he was preparing them, preparing their hearts, preparing their minds, preparing them for this process so that when Jesus comes, he will be able to elevate them into glory. और इसलिए वो उन्हें तैयार कर रहा था, उनके हृदय को, उनके मनों को, ताकि जब यीशु मसीह आए, वो महिमा में आए। एलिवेट देम इनटू ग्लोरी, राइट? Yes. ताकि वो Yes. उन्हें महिमा में ले जाए। So we've answered question number 1. Question number 2. Jesus kept telling the people all the time, love your neighbor as yourself, love your brother as yourself. तो अभी तक हमने पहला प्रश्न का उत्तर दिया है। जब हम प्रश्न नंबर दूसरे पे आते हैं, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमेशा लोगों से कहा है कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो, तुम लव योर नेबर, जैसे तुम अपने पड़ोसी से ऐसे प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो। Then he also says, before you go and offer your korban on the altar, go back and reconcile with your brother. तो यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अपना बलिदान जब देने जाते हो, वाचा के नजदीक जाकर जब तुम अपना बलिदान देने जाते हो, तुम जाओ, पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर लो। If you do not reconcile the heart of with your brother, you are not eligible to offer your korban on that altar. तो तुम जब वेदी के सामने जाके जब तक तुम्हारा, आई एम सॉरी, कैन यू रिपीट? If you're not able to reconcile with your brother first, how can you go and give your offering on the altar? तो जब तक तुम अपने भाई के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते, तब तक तुम कैसे अपनी भेंट उस वेदी के सामने लेके जा सकते हो? Because if you're angry with your brother and you have sinned with your brother, that means you have not slaughtered the animal inside of you that sinned inside of you. क्योंकि अगर आप अपने भाई से नाराज हो या गुस्सा हो, तो इसका मतलब है कि आपने आपके अंदर के जानवर की आत्मा को नहीं मारा है, जो आपको पाप करने से जो पाप में गिराता है, आपने उस जानवर को अपने अंदर से नहीं मारा है। जब तक वो जानवर नहीं मरेगा, आप परमेश्वर के आगे वो की तरह कैसे जाओगे? So you can give all the animals as a sacrifice on the temple, but your real process of coming near to God, Korban Khai, is zero. तो आप परमेश्वर के आगे सारे जानवरों की भेंट चढ़ा दो, पर जब तक आप अपने अंदर के जानवर को नहीं मारोगे, तब तक वो सारे जानवरों की भेंट चढ़ाई हुई बिल्कुल शून्य है। So the reconciliation of people, all sin is bad relationship. सो एक बार फिर से मेल मिलाप कराना या मिलवाना उन सारे लोगों का या रिश्तेदारों का, वो सारा कुछ गलत है। रिकंसिलिएशन ऑफ पीपल, All sin is bad relationships. आई एम सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड। All sin is bad relationship. सारे पाप एक बुरे रिश्ते की तरह होते हैं। Not tarika. तरीका, Sin is bad relationships. एक पाप है जो पूरा रिश्ता है।
When your relationships with each other is bad, not reconciled, that means you're living in sin. तो इसका मतलब है अगर तुम्हारा किसी के साथ बुरा है और वो जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि तुम पाप में हो। This is why Jesus says, love your God and love your neighbor as yourself. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम तुम्हारे परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने पड़ोसी से प्रेम रखो जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो। So it was very important for John the Baptist to come and to bring all these people into remembrance and to repentance. Otherwise, Jesus would have not been able to come and God would have stricken the earth with a curse, as he says in Malachi. इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा लोगों को कहता है कि अपने गलत कामों से मुड़ो, पश्चाताप करो और वो लोगों को कहता है कि तुम अपने आप को बदलो और इसलिए अगर वो नहीं कहता तो यीशु मसीह नहीं आते तो परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को श्राप से नष्ट कर दिया होता। So just imagine if John the Baptist never came and prepared the Jewish people for the coming of the Messiah, what would have happened? तो सोचिए अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अगर नहीं आता और अगर उन लोगों को यहूदी लोगों को तैयार नहीं करता तो सोचिए क्या होता। But the mercies of God are so great that Jesus came and he died for all of us. परमेश्वर की दया देखिए कितनी अद्भुत है कि यीशु मसीह आए और हम सब के लिए वो मारे गए। And he said, you cannot do the perfect Korban Khai, but I will do it for you. और उन्होंने कहा कि तुम सही तरीके से अपने आप का कुर्बान नहीं दे सकते पर मैं तुम्हारे लिए दे सकता हूँ। Read verse 5 and verse 6. Of Luke? Luke chapter 3. Okay. हम देखेंगे लूका का 3रा अध्याय 5वां और 6वां वचन। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा और हर वाणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगी। Everything shall be made straight, Yashar El. Everything shall be made into Israel, and all flesh shall see the staran, the salvation of God. तो यहाँ पे कहा गया है कि सारी चीजें सीधी की जाएगी, सारे मार्गों को सीधा किया जाएगा। यशार एल जिसका मतलब अभी हमने सीखा है और सारे हर एक इंसान परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। Are you all understanding what we have learned today, friends? This is a great revelation for you all. If you are not able to understand this, please get in touch with me. I am willing to do this again with you all to have the full meaning of the role of John the Baptist. तो क्या आप समझ रहे हैं जो आज हमने आपको सिखाया ये उन सारी बातों का रहस्य उद्घाटन है जो आपको बताता है कि किस वजह से यूहन्ना द बपतिस्मा आया था और किस वजह से सारी इज़राइल का मतलब ये सारी बातें जो आज हमने सिखाई है अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इनसे बात कर सकते पास्टर से बात कर सकते हैं। Read verses 7, 8 and 9. हम लूका का 3रा अध्याय 7वां और 8वां वचन पढ़ेंगे। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। 9. नहीं और अब ही कुल्हड़ों पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। Now you'll understand verse 9. He says, the axe is laid at the root of every tree, of every human being is ready for that judgment. Because if the tree is not giving fruit worthy of the kingdom of God, it's going to be cut down and burnt in the fire. तो अब यहाँ पे इस 9वें अध्याय का 9वें वचन का आप मतलब ये समझे कि कुल्हड़ पेड़ों के जड़ पर धरा गया है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। उस तरह से अगर हमारे जीवन में जो भी इंसान अगर गलत चीजों के साथ में सही फल नहीं देगा तो वो काटा जाएगा और नष्ट किया जाएगा। Because the Jewish people were given the role to rectify the world,
through this process of Qurban, which they had forgotten. क्योंकि यहूदी लोगों को वो भूमिका दी गई थी, उन्हें कुर्बान के तरीके से कि वो कुर्बान चढ़ा के वो अपने पापों की क्षमा माँग सकते थे, अपने गलत चीज़ों से अपना मुँह मोड़ सकते थे। और इस तरह से वो पूरे संसार में ये बात बता सकते। So, friends, I hope you all have learned something very, very important today. And till we meet next week, and till we go further into understanding what John the Baptist is doing and saying and our Lord Jesus Christ, please reflect on all that we've studied so far. तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो भी आज हमने सिखाया, आपने समझा है और आपने समझा है कि हमने जो सिखाया यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में और यीशु मसीह के बारे में, आप एक बार फिर से इसे सुनिए और आप फिर से इस पे ध्यान दीजिए जो आज हमने सिखाया है। Until we meet next weekend, next week, Wednesday at 9 o'clock. God bless and take care, each one of you all, and shalom. Good night. तो जब तक हम नहीं मिलते अगले बुधवार को 9 बजे तक।